So, good morning, friends. I welcome you in today's morning class. And since yesterday, we have been discussing and studying the story The Little Girl by Catherine Mansfield. This is the third lesson of our book, Behayu, and we will start the lesson today from the point we have left yesterday. So, with this part that we will learn today, we will discuss today, we have two parts of this chapter, The Little Girl, and I hope that, like the first part, you will like this video also. So, before wasting any time, we will start the lesson. And before I begin, I would like to brief the lesson in a nutshell that we have seen a little girl around whom this whole story is, pictured or narrated, and that little girl is Kezia. So this Kezia, you see, is a very tender small girl who is frightened of her father a lot. You see, she has a great fear about her father in her mind, and whenever she tried to speak to him, either he has no time for her, or maybe it is his behavior, it is his trait of his personality that he talks too little to his daughter. But the first part is totally about the fear that the little girl had about her father. But in the second part, we will see a twist in the lesson, a twist in the story, and we will have a second side, we will have a brighter side of the personality traits of a human being, and we will come to know, we will come to this result or decision, or this point, that there are different kinds of fathers, but there are fathers, and fathers, they are the most lovable and the kindest persons on the earth. So here in this story also we have seen a different father. So the frame of Kezia's father can be echoed in many homes in India, in abroad. Everywhere you can find fathers like Kezia's father. But in this part, we will see one more father, and that is the MacDonald. You see. So, part number 9, we will begin from this part. So, the McDonald's lived next door. McDonald's जो है वो कहाँ रहते हैं, सामने रहते हैं. Lived next door, opposite to them there lived McDonald family. McDonald's is the name of a person. Okay, he lived there with his 5 sons. They had 5 children. McDonald's के कितने बच्चे हैं? They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. Tag is a children's game of catching one another. So looking through a gap in the
फेंस होता है बॉर्डर। फेंस क्या होती है? बॉर्डर होती है, इस तरीके से बॉर्डर होती है ना किनारे। बेड़ भी जिसको बोलते हैं। सो लुकिंग थ्रू द गैप, फेंस, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, है ना, वी हैव डिस्कस्ड इट। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द विन। क्या खेलते हैं वो? टैग गेम खेलते हैं। 5 बच्चे हैं मैकडोनाल्ड्स के, और वो अपने 5 बच्चों के साथ खेलता है, अपना जो है समय उनको देते हैं। द फादर विद द बॉय विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स। ओके, बेबी बॉय है वहाँ पे, माओ है। तो माओ कहाँ है? मैकडोनाल्ड के शोल्डर के ऊपर बैठा है। Two little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. और 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चियां हैं, वो उसके राउंड, उसके पॉकेट को जो है चिपक जाती है, और वो उनको जो है राउंड राउंड घुमा रहा है। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. और पूरा ये टैग जो गेम है, पूरा ये प्लेफुलनेस, कीजिया जो है अपने फेंसेस से, अपने फेंस से जो है उसमें थोड़ा सा गैप है, वहाँ से वो दिखती है। दिखेगी कीजिया यहाँ पे, है ना, ये है फेंस, ये कीजिया है, ये इस गैप से जो है इनको देख रही है। माओ कहाँ बैठा है? माओ जो है ऊपर बैठा है। ये देखो 2 लड़कियाँ जो उसके कोट पैकेट को लटके हुए हैं, ठीक है, और भी 2 बच्चे हैं, और सबको वो खिला रहा है। नाउ ऑब्वियसली कीजिया वुड थिंक अदरवाइज, दैट शी इज द ओनली गर्ल, ओनली चाइल्ड ऑफ हर फादर, एंड व्हाई ही कांट बी लाइक मैकडोनाल्ड, मिस्टर मैकडोनाल्ड। तो जाहिर सी बात है कीजिया सोचेगी कि मेरे पापा इनके जैसे क्यों नहीं है। देखिए वो 5 बच्चे हैं, उनको कितना अच्छे से खिला रहे हैं। Then it was she decided there were different sorts of fathers. फिर कीजिया के मन में आता है कि there are different sorts of fathers. Now the story changes from this point. After this description of McDonald family, the story changes into a twist. You see, suddenly one day, अचानक एक दिन क्या हुआ? Mother became ill. Mother became ill. Mother जो है बीमार हुई। And she and grandmother went to hospital. बहुत ही सुंदर पास्ट टेंस का यूज यहाँ पे राइटर ने किया है। became है ना, सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। दोनों कहाँ चली गई? हॉस्पिटल चली गई। एंड द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। पापा होंगे अपने रूम में होंगे, ठीक है, या ऑफिस गए होंगे, और लिटिल गर्ल जो है कीजिया अकेली रह गई अपनी कुक के साथ। उनके घर में एक लेडी कुक थी, उसका नाम है एलिस। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। डे टाइम में तो सब कुछ ठीक रहा। ये वर्ड के मीनिंग थोड़ा लिख लेना आप पूरे। डे टाइम में सब ठीक था, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, शी ग्रू सडनली अफ्रेड। वो अचानक से क्या हो गई? डर गई। अब शाम का समय हो गया, बहुत समय हो गया, अब बहुत डॉक्टर के पास गई है ना, उस जमाने की बात है ये, है ना, एकदम डोर स्टेप्स पर जो इनके डॉक्टर नहीं है, कहीं दूर वो गए होंगे, हो सकता है दूसरे गांव वगैरह, शहर वगैरह हो गए होंगे, है ना, बड़े से शहर में। तो आने में उनको शायद देर लग गई और रात हो गई, लेकिन फिर भी उनकी मदर और ग्रैंड मदर उसकी नहीं आई। What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा एलिस से कि एलिस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम अगर चली जाओगी तो मुझे फिर से वो नाइटमेयर आएगा। नाइटमेयर होता है बैड ड्रीम। बैड ड्रीम का मतलब होता है डरावना ख्वाब। क्या होता है? डरावना ख्वाब, बैड ड्रीम। ओके, नाइटमेयर। तो उसको एक नाइटमेयर आता है, हमेशा नाइटमेयर्स आते हैं हमको भी, देखिए, है ना, तो रात में सपने आते हैं जब आप डर जाते हैं। What shall I do if I have a nightmare? She asked.
I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I cannot stay in the dark. It all gets whispery. बोलती है कि जब भी मुझे इस तरीके का नाइटमेयर आता है, जब मैं अकेली होती हूँ, तो मैं एकदम से उठ जाती हूँ और ग्रैनी जो है, ग्रैंड मदर, मुझे अपने कमरे में ले जाती है. आई कैनॉट स्टे इन द डार्क. इट ऑल गेट्स विस्परी. बोलती है कि मैं बिल्कुल अकेली नहीं रह सकती डार्क में, अंधेरे में. ऐसा लगता है कोई कोई विस्पर कर रहा है, कोई मुझसे बात करने लगा है. लेकिन एलिस भी क्या करेगी? एलिस बोलती है, जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट टू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. पा मीन्स पापा. पा का मतलब यहाँ पे पापा. पापा भी आ चुके होंगे और वो बोलते हैं कि तुम अपने रूम में अच्छे से सोते रहना और अपने पापा को नहीं उठाना, चिल्लाना नहीं. डू नॉट स्क्रीम, डोंट स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. ही इज ऑलरेडी टायर्ड मे बी. ओके, सो तुम चिल्लाना नहीं और पापा को उठाना नींद से. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन वही नाइटमेयर आया. क्या है नाइटमेयर? क्या है सपना? द बचर विथ ए नाइफ एंड ए रोप. बचर है कसाई. बस बचर होते हैं ना, वो जानवरों को मारने वाले. द बचर विथ ए नाइफ एंड ए रोप. और उसको हमेशा ये सपना आता है. कौन सा? एक बचर है, एक कसाई है, और उसके हाथ में क्या है? एक हाथ में नाइफ है, एक हाथ में चाकू है, और एक हाथ में क्या है? रस्सी है, रोप है. हु केम नियरर एंड नियरर. वो धीरे धीरे सामने आ रहा है, सामने आ रहा है, उसके करीब आ रहा है, करीब आ रहा है. स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल while she could not move, could only stand still, cried out. और वो हिल नहीं पा रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है. सब नींद में हो रहा है, सब सपना आ रहा है उसको. ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, वो चिल्ला रही है. सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड. और वो इसी तरीके से चिल्ला रही है. उतने में उसने देखा, एकदम से वो जागी है ना, पसीना उसको आ रहा है, एकदम से वो जागी. शिवरिंग, समझते हैं ना, थर थर काँप रही है. और उसने देखा कि ग्रैंड मदर नहीं है. हर रोज जो है, हर बार जो है, जब भी उसको सपना आता है तो ग्रैंड मदर आकर उसको अपने पास ले जाती है, अपने रूम में ले जाती है. लेकिन आज उसने देखा, आज कौन आया है? पापा आए हैं, और उनके हाथ में क्या है? कैंडल है. व्हाट इज द मैटर, ही सेड. उसने पूछा, उन्होंने पूछा, पापा ने, क्या हुआ? ओ ए बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी. ओ, तो पहले से ही पापा से डरती है. पापा को बोलती है, पापा अब बचर, वो देखो फिर से वो बचर आया, उसके हाथ में नाइफ है. ग्रैनी कहाँ है? आई वांट ग्रैनी. ही ब्लू आउट द कैंडल. उन्होंने वो कैंडल बुझा दी. बेंट डाउन, नीचे झुक गए. बेंट का मतलब होता है झुकना. ओके. एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म. फिर से एक बार बहुत सुंदर पास्ट टेंस का यूज, कॉट अप. ठीक है ना. ब्लू, ब्लू, ब्लो का पास्ट टेंस ब्लू, ब्लो यानी बुझा देना. उसके बाद बेंट, बेंड का पास्ट टेंस बेंट. ओके. और उसके बाद कॉट, कैच का पास्ट टेंस कॉट. V2 है सब, ये सब क्या है? V2. ठीक, सिंपल पास्ट टेंस. सो ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन, वो नीचे झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म. और पापा ने बच्ची को अपने गोद में उठा लिया. कैरिंग her along the passage to the big bedroom. बिग बेडरूम मीन्स पापाज बेडरूम. यहाँ पे बिग बेडरूम का मतलब क्या है? वो तो उसकी तो नर्सरी है, छोटी सी बेडरूम होगी उसकी. और वो पापा जो है उसको उठाया और अपने साथ कहाँ ले गए? अपने बेडरूम में ले गए. और न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड. और वहाँ पर वो गई तो केजिया ने देखा, एक न्यूज़पेपर पड़ा था वहाँ पे. पापा जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, ऑफिस से आने के बाद. आपने देखा. ही पुट अवे द पेपर. पापा ने उस पेपर को बाजू में जाकर रख दिया. नाउ सी डियर फ्रेंड, दिस इज द पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. तो इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन कि व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, तो वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होगा ही पुट्स अवे द पेपर. तो क्या फर्क है? ये पुट्स यहाँ पर आएगा.
So this is the trick to identify simple past tense and simple present tense, since all the three forms of this you see, all the three forms of this verb put are same. तो जब भी कभी ये बात आती है तो हम इसको कैसे कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस है. ही के बाद अगर पुट के साथ एस नहीं लगा है, या किसी भी इस तरीके के वर्ब के साथ जिनके तीनों फॉर्म सेम है, यस नहीं लगा है, तो समझ जाना चाहिए कि वो सिंपल पास्ट टेंस है. और वैसे भी लेसन पूरा सिंपल पास्ट टेंस में रन हो रहा है. ओके. A newspaper was on the bed. He put away the paper. पापा ने पेपर उठा के रख दिया. Then carefully tucked up the child. और बाद में जो है पापा ने धीरे से बच्ची को अपने बेड के ऊपर रखा. He lay down beside her. देखिए फिर से एक बार नया वर्ड आया. lie का पास्ट टेंस है. lie फर्स्ट फॉर्म है, lay सेकंड फॉर्म है, और लेड या लेन थर्ड फॉर्म है. ओके. एंड ही ले डाउन बिसाइड हर. और पापा जो है केजिया के पास में जो है लेट गए, सो गए. हाफ एस्लीप स्टिल. अभी भी उसके आंखों में आधी नींद है. स्टिल विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम. क्रेप्ट क्लोज. क्रिप का पास्ट टेंस क्रेप्ट. और अभी भी जो है वो बच्चर की जो स्माइल है उसके दिमाग से, उसके जहन से नहीं गई है. जैसे ही पापा ने उसको अपने बाजू में रखा और वो भी वहीं पे जो है थोड़ा सा लेट गए, तो केजिया ने उनको पक्का पकड़ लिया. देखिए आगे एक आपको चित्र में बताना चाहता हूँ. सी दिस पिक्चर. इमेजिन दिस इज केजिया एंड दिस जेंटलमैन इज केजियाज फादर. ओके. इस तरीके से जो है उसने पापा को पक्का पकड़ लिया. एंड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. और पापा के शर्ट को उसने पक्का पकड़ लिया और एकदम से जो है उनके गोद में वो सो गई. देन द डार्क डिड नॉट मैटर. सी ले स्टिल. स्टिल का मतलब होता है शांत. स्टिल का मतलब शांत. एकदम आराम से वो सो गई. अब कोई चिंता नहीं थी. देन द डार्क डिड नॉट मैटर. इसका मतलब है कि वेन एवर यू आर इन द लैप ऑफ योर फादर, वेन एवर यू आर इन द लैप ऑफ योर फादर और मदर और योर पेरेंट्स, देन द डार्क डिड नॉट मैटर. मतलब कोई भी अंधेरा फिर आपको डरा नहीं सकता है. यू आर सो मच सिक्योर देयर. ओके. आप वहां पर इतने सुरक्षित हो जाते हैं कि किसी भी तरीके का डर आपके दिमाग से हट जाता है. बाद में पापा बोलते हैं, हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर. फादर ने कहा कि बहुत ठंड है, तुम्हारे पैर जो है मेरे पैरों के ऊपर तुम रब करो, एंड गेट देमसेल्व्स वार्म. टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल. और एकदम से थक गए थे पापा. ओके. एकदम से थक चुके हैं. और पापा जो है ही स्लेप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल. और पापा जो है केजिया को सुलाने के लिए उसके रूम में लाए हैं और वो खुद ही जो है उसके पहले सो गए, क्योंकि वो थके हारे आए हैं सुबह से और इसकी तो आधी नींद कम से कम हो गई है केजिया की. और वो उसके सामने सो गए. और केजिया देख रही है कि अरे इतना खतरनाक आदमी, इतना डेंजरस आदमी इनको मैं समझती थी अब तक, ये देखो कैसे जो है सो गए एकदम से. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. एकदम से एक फनी फीलिंग उसके दिमाग में आई. बोलती है पुअर फादर. देखिए एकदम से ट्विस्ट है इस कहानी में. केजिया की फीलिंग्स जो है एकदम फियर जो है अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो गई. बोलती है पुअर फादर नॉट सो बिग. क्या बोलती है? नॉट सो बिग. अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी वो? यस्टरडे हमने देखा ही वॉज सो बिग लाइक ए जायंट. ओके. अब क्या बोल रही है? नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम. नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम. लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना. देखिए लुक आफ्टर, लुक आफ्टर यानी टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग.
तो बोलती है मेरी तो देखभाल करने के लिए एलिस है, मदर है, ग्रैंड मदर है, सब लोग हैं, गार्डनर होंगे और भी नौकर चाकर होंगे, लेकिन मेरे पापा देखो, उनकी तो देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वो ग्रैंड मदर को भी जो है चिपक के सो जाती है ना, और अभी वो पापा के साथ चिपक के जो है ऐसे सो गई है, तो उसको ये फीलिंग हो रहा है कि ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर की बॉडी जो है वो पापा की बॉडी से बड़ी सॉफ्ट है, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। लेकिन हार्डनेस कैसा है? इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। कितना सुंदर उपयोग जो है, कितना सुंदर यूज सेंटेंसेस का यहाँ पर राइटर ने किया है। क्या बोलती है? इट वॉज नाइस हार्डनेस, टू डिफरेंट, यू सी, टू डिफरेंट। हार्डनेस कैनॉट बी नाइस, बट वेन एवर यू आर इन योर फादर्स लैप, ओके, फादर की गोद में जब आप अगर है, तो फादर की बॉडी अगर हार्ड भी है, तो इट इज नाइस हार्डनेस। क्या बोलते हैं? ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड। और मिस्टर मैकडोनाल्ड को क्या काम है? अब एकदम से जो है किजिया की फीलिंग, किजिया की थिंकिंग जो है फादर के प्रति चेंज हो रही है, और बोलती है कि हर रोज मेरे पापा को कितना काम होता है। ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड। और वो इतना काम करते रहते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। ही हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। उनकी क्या गलती थी? उन्होंने मुझे एक दो थप्पड़ मार दिए, रूलर मार दिए, उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैंने भी तो कितना गलत काम किया था। मैंने उनकी पूरे फाइन पेपर फाड़ दिए थे, उतनी उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ दिया था। सी स्टर्ड सडनली एंड साइड। एकदम से वो जो है पापा को और जाके चिपक गई, और वो एकदम से उसने जोर से आ भरी, जोर से सांस ली, है ना। इट वॉज ए साई ऑफ रिलीफ, यू सी, इट वॉज ए साई ऑफ रिलीफ। अपने फादर के प्रति उसके मन में जो अब तक जो टेंशन था, जो प्रेशर था, जो एक इमोशनल प्रेशर उसके ऊपर बना था कि ये मेरे फादर है, इनके बगैर मैं रह नहीं सकती, लेकिन मेरे मन में जो है किस तरीके की फीलिंग फादर के प्रति आ रही, वो इमोशनल जो बर्डन था एकदम से रिलैक्स हो गया। एंड शी साइड, a sense of relief was there। जैसी उसने जोर से आ भरी, सांस ली, पापा एकदम से जाग गए। पापा ने पूछा, व्हाट इज द मैटर किजिया? आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम? और कोई ड्रीम आया क्या? और कोई बच्चर तुमको सता रहा है? सेड द लिटिल गर्ल। ओ, लिटिल गर्ल कहती है, ओ पापा, माई हेड इज ऑन योर हार्ट। क्या बोलती है? ओ पापा, अनदर ड्रीम? नो ड्रीम इज देयर। माई हेड इज ऑन योर हार्ट। मेरा सिर जो है आपके हार्ट के ऊपर है। एंड आई कैन हियर इट गोइंग, और आई कैन हियर इट गोइंग, और आपकी धड़कने जो है मैं सुन पा रही हूँ। आपका जो हृदय चल रहा है उसको मैं सुन पा रही हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और इससे इस कहानी का एंड होता है इस वंडरफुल लाइन से, कि जिया बोलती है अपने पापा को, डियर फादर, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट। मीन्स बिग हार्ट not just in terms of his body, not just in terms of his personality, my dear friends, but what a wonderful heart, what a liberal heart you have, what a charitable heart you have. Though it is not too much tender, but it is so nice in the sense, वो ये बोलना चाह रही है कि जिया कि पापा, आपका दिल कितना बड़ा है, आपका हृदय कितना शानदार है, आपका मन कितना विशाल है। ठीक है, कि आपके आगोश में जो है मुझे एकदम से न सिर्फ सिक्योर लग रहा है, बल्कि मैं बहुत ही जो है अच्छा फील कर रही हूँ। इस तरीके से इस एंटायर स्टोरी में दोस्तों हमें एक डॉटर फादर रिलेशनशिप के बारे में
एक पेरेंट और एक जो बच्चा होता है, चाइल्ड होती है, उनके रिलेशनशिप के बारे में जो ट्विस्ट्स आते हैं जीवन में, अलग अलग स्टेजेस से हम हमारे जीवन से गुजरते हैं, है ना। बचपन होता है, एडल्सेंस एज होता है, यंग एज होता है। तो अलग अलग स्टेजेस से हम गुजरते हैं, अलग अलग पहलू जो है हमारे जीवन के बदलते रहते हैं। और इन हर स्टेजेस में फादर, हमारे मदर, पेरेंट्स, इनके साथ कभी कभी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और इस तरीके से जो है हम जिस जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी जो है चेंज होती है। सो this is this wonderful story by Catherine Mansfield. So thank you very much. We will see the exercise. Uh, I shall send all the exercise in PDF file uh, today itself or tomorrow. Thank you very much.